Hello children, welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Gadawara. I am Amit Toshniwal and this video is for standard 12th, subject is accountancy, chapter name is admission of a new partner, part 1. Admission of new partner means some other person other than old person makes his entry into the firm. It means कोई नया व्यक्ति फर्म के साथ एसोसिएट हो रहा है. Okay, so why there is a need of a new partner? It means there are some lackings in the business which is already existing, and to rectify those lackings और जो कमियां हैं उसकी उनको दूर करने के लिए a new person is required. So what are the grounds on the basis of those a new partner admits into the firm? So you can say condition of new partner or need of new partner. So there are many conditions, out of which we will discuss some. The first one is to get capital. Without sufficient capital and funds, a business cannot run. Money, funds are the blood of a business. When business is lacking sufficient working capital, then it may require a person who can invest some capital into it. That is why a new partner is admitted to fulfill the demand of working capital, so that business should not suffer financial crisis. Okay. Second point is to increase managerial ability. If there are more hands, then a business can run its functioning in a very smooth and flourish way. If there is a single person or two persons, so there are limitations of working for them. If more persons are there, more hands are there, it means they can work together and one person can take the responsibility of running the business, other can look into the markets, third one can be given the charge of financial matters and affairs. Okay. If number of persons are less, then what will happen? Those persons only will have to manage each and everything, looking after the business, looking after the market conditions, looking after the financial affairs, and interacting to customers, bankers, investors, creditors, everything. तो वो सब खुद उनको ही करना पड़ेगा. लेकिन यदि पर्सन ज़्यादा हैं तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी डन. काम को बांटा जा सकेगा. जब काम बढ़ जाएगा, सो दैट विल बिकम कन्वीनियंट, ईजी, फ्लोरिश चलने लगेगी सारी चीज़ें. तो दूसरा रीज़न होता है टू इंक्रीज मैनेजरेबल एक्टिविटी. थर्ड इज ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर. इफ एग्जिस्टिंग फर्म is losing a partner either on the retirement of existing partner or else on the death of old partner, then there is a vacancy, the place is vacant. To fill that place, a new person can be admitted into the firm. जब कोई पुराना पार्टनर मर जाए, डिमाइज हो जाए या फिर रिटायरमेंट ले ले, तो उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकेगा. फोर्थ इज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज. Partners and firm may have a policy that honest and
devotee employees will be promoted as partners if they can be, I mean to say, they can be given a share of profit out of gross profit apart from their salary, and this will work to spread enthu in other employees, and each employee will try to be a partner and they will work hardly, they will hard work and they will discharge their duty with full devotion. सबको लगेगा कि कल मैं भी पार्टनर हो सकता हूँ, आज यदि मैं अच्छा काम करूँगा, फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा, और मेरी कुछ करने से यदि फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आई ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट फर्म, आई कैन गेट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी एंड माई रेपुटेशन विल इंक्रीज. तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस. There may be a person who has got that reputation and he can influence customers, he can interact, he is attractive, he knows market conditions well, so he can be admitted into the firm so that business can grow leap and bound. दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा. यदि कोई व्यक्ति एक ऐसा है जिसके पास नॉलेज बहुत है उस फील्ड का, उस फील्ड का यदि नॉलेज है तो वो फर्म को हेल्प कर सकता है प्रमोट करने के लिए, आगे जाने के लिए. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, टू स्टार्ट बिजनेस इन अदर कंट्रीज a person can be appointed as a partner for abroad so that business expansion becomes easy and comfortable. तो किसी व्यक्ति को बाहर बिजनेस शुरू करना है तो अब यहाँ वाला यदि वहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ का बिजनेस ठप हो जाएगा, उसको कौन देखेगा. सो अ पर्सन कैन बी गिवन और एंटाइटल्ड एज अ पार्टनर abroad टू इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यदि अपन बाहर बिजनेस कर रहे हैं तब. एंड टू अवॉइड बिजनेस कॉम्पिटिशन. सो दिस इज द एज ऑफ राइवलरी. देयर इज कट-थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतियोगिता, स्पर्धा चल रही है. तो टू एंड दैट राइवलरी एंड दैट कॉम्पिटिशन, दैट पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन टू द फर्म. इट मीन्स चोर चोर मौसेरे भाई, तुम अलग लूट रहे हो, हम अलग लूट रहे हैं, दोनों को मिलके लूटना है. और यदि एक दूसरे को हम गला काट करते रहेंगे तो कस्टमर उसका फ़ायदा ले लेंगे, तो वो दोनों आपस में मिल गए और बिजनेस जो राइवलरी है, कंपटीशन है, इट एंड्स, वो ख़त्म हो जाता है और उसको पार्टनर बना दिया जाता है. सो दीज आर द कंडीशंस. Next is legal status of new partner. If a new partner enters, so when he can be entered, only and only on the consent of all partners. If any one of the partners disagree for the admission of a new partner, he cannot be given a chance to be a partner. It means Section 31 Partnership Act 1932 states that if there is no agreement, then on the consent of all the partners, a new partner can be admitted into the firm. When he comes into the firm, then he gets some legal status. What? Two. First, he'll get right over the property, business property, and second, share of profit in firm. So natural सी चीज़ है. सेकेंड वाली चीज़ तो नेचुरल है, टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म. कोई भी आदमी आएगा फॉर्म में तो फ्री फोकट में तो आना नहीं है, मतलब ही डिज़ायर समथिंग टू अर्न फ्रॉम द फर्म. तो राइट टू शेयर प्रॉफिट, इट इज़ क्लियर. व्हेन ही कम्स
and takes a share from profit, it means old partners are losing, they are losers. They are losing a share of profit for the new one. And for that, new partner will have to bring his capital into the business. How much capital he has to invest? That will be decided by old partners by the agreement and partnership deed. तो वो कितना लेकर आएगा तो वो डिसाइड होगा. And as the capital which he invests, accordingly that only he will get the share of profit into the firm, or else one partner, more than one partner or firm can give guarantee to the partner to earn profit. तो ये 3 कंडीशन है 4, जिनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी इतना जान लेना ज़रूरी है कि जो भी नया पार्टनर आएगा तो वो फर्म में से अपना शेयर लेगा. ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर लूज़ करना पड़ेगा, मतलब वो सेक्रीफाइस करेंगे, और नया वाला पार्टनर गेन करेगा. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो. तो वही चीज़ कंटिन्यू यहाँ पर होगी एडमिशन के टाइम पर. ठीक है. फिर राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी. A new partner is not liable or responsible the actions and activities done by the business and its partner before his arrival. Whatever had happened in past, so new partner is neither liable nor responsible for those activities. After his entrance, he will be liable for all such business affairs. तभी वो liable. उसके पहले से उसको क्या मतलब है, क्या हुआ बिजनेस में. हाँ, इफ ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेकिंग प्रीवियस लाइबिलिटीज ओवर हिम, देन ही विल हैव टू गिव इन राइटिंग टू द फर्म दैट ही इज टेकिंग ऑल द लाइबिलिटीज and responsibilities of previous years done by the old partners in the existing firm. ये उसको पहले बताना पड़ेगा. Otherwise he is not liable, but as soon as he becomes a partner of the firm, he will be owning a share on the business property. वो भी business property में हिस्सेदार हो जाएगा. कितना? जितना कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है. हर चीज़ जो होगी वो कैपिटल रेशियो में होगी या फिर जो भी एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ होगा, एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ होगा, उसके हिसाब से होगी. ठीक है. When a new partner enters, so naturally in lesson number 3 reconstitution of partnership, we already studied that. क्या होता है उस समय जब नया पार्टनर आता है? कोई भी कंडीशन होगी, there will be 100% definite change in profit sharing ratio. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो 101% जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी. तो बिफोर एंटरिंग अ न्यू पार्टनर देयर आर सम अकाउंटिंग process, accounting functions which has to be completed. What are they? First, computation of capital of new partner. नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा उसका डिसीजन पहले तय होगा कि कितना पैसा तुमको लेकर आना है. सेकेंड, एडजस्टमेंट इन चेंज इन पीएल शेयरिंग रेशो. नेचुरल, ओल्ड वाले लूज कर रहे हैं, नए वाले को गेन हो रहा है, वो अपना को शेयर ले रहा है. तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड पार्टनर का भी चेंज होगा और नया वाला पार्टनर जब कुछ हिस्सा ले रहा है आउट ऑफ फॉर्म में से ले रहा है वो, या फिर ओल्ड पार्टनर में से कोई एक या एक से ज़्यादा उसको गारंटी दे रहे हैं या अपना शेयर दे रहे हैं, बाकी के लोग नहीं हैं. तो ये भी, सो ऑल दीज कंडीशंस विल डिस्कस लेटर इन अदर वीडियोस. थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसके बारे में अपन लेसन नंबर 3 में बात ऑलरेडी कर चुके हैं. ओल्ड पार्टनर्स हैव वर्कड हार्ड एंड मेड देयर एफर्ट्स एंड डिवोशंस टू ब्रिंग इन टू द फर्म एट दैट लेवल एंड फॉर विच, मतलब उसको क्या मिल रहा है, सीधी परसी हुई थाली मिल रही है नए वाले पार्टनर को. उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बिजनेस सेटअप है, केवल उसको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करना है. तो वो चलती हुई गाड़ी में बैठ रहा है, तो वो उसको चलाया किसने है, खाना किसने तैयार किया, परसी थाली मिल रही है उसको सीधा. सो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं
वो चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया है प्रीवियस ईयर्स में उसका कुछ शेयर हमको मिले, तो वो कहलाता है गुडविल ऑफ फर्म। एंड वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स इज कॉल्ड प्रीमियम ऑफ गुडविल। उसको प्रीमियम कहेंगे कि भाई इतना कैपिटल तो तुम्हें लाना ही है, दैट विल रिमेन इन बिजनेस, बट गुडविल यू हैव टू ब्रिंग एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ओल्ड पार्टनर्स। वो आप आपस में बांट लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वेदर दे वांट टू कीप दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस और दे वांट टू विदड्रॉ, वो उन पे डिपेंड करेगा, है ना। बट amount of goodwill and accounting of goodwill will be done at the time of admission of new partner. Adjustment of revaluation of assets and liabilities. See, business now, it is always fluctuating, it does not remain same, it's not a linear one, okay, that is zigzag. So every time, every day, liabilities as well as वैल्यू ऑफ असेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो बिफोर एंटरिंग अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, जो असेट्स है उसको रिवैल्यूएट करेंगे और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, जो उनकी देनदारियाँ, उनको भी रिवैल्यूएट करेंगे। एंड वॉट एवर प्रॉफिट इज देयर ऑन द एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नए वाले को नहीं मिलेगा, पुराने वाले को मिलेगा। एंड इफ देयर इज अ लॉस, लॉस कब होगा, व्हेन द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, तो लॉस होगा, मतलब ऑन रिवैल्यूएशन, सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा, सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। इस बारे में भी अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन में बात कर चुके हैं कि जितना भी पुराने साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, रिजर्व्स जितने भी उन्होंने बना के गुल्लक में रखे होंगे डिफरेंट प्रोविजंस, दे ऑल्सो, मतलब सारी की सारी वो चीज़ें ओल्ड, क्योंकि उसमें तो नए वाले पार्टनर ने कुछ किया ही नहीं ना, तो वाई शुड ही गेट, उसको नहीं मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसका जो अमाउंट होगा वो उसमें ले लेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट, sacrificing ratio, gaining ratio, which already we studied, but here in different manner, and what entries are done at the time of revaluation. Okay, so let me write the next thing, then we shall discuss.